Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Anupal and I'm back with the chapter of calorimetry and end में हम thermometry भी करेंगे. आज के लेक्चर में हम पूरा start to end करने वाले हैं calorimetry 0 to PYQs. We are going to cover all the theory and with every concept I'm going to solve lots of questions and lots of PYQs. Alright, so we're going to start off with calorimetry and end में इस lecture के end में मैं thermometry के बारे में भी thermometry भी cover कर लूँगा. So I hope you are as excited as I am. Let's go. Let's start the chapter of calorimetry with a very simple concept कि heat किस तरीके से flow होता है. So suppose मेरे पास दो objects हैं. And let's say they are in contact. Suppose this is object 1, this is object 2. And let's say temperature of 1 is greater than temperature of 2. So heat will flow from the higher temperature body to the lower temperature body. Very simple concept. The heat will flow from the higher temperature body to the lower temperature body until the temperatures become equalized. ठीक है? Heat flows till the temperatures become equal. As soon as temperature दोनों का equal हो गया, उसके बाद heat flow will stop. Okay. So इस chapter में हम देखने वाले हैं कि exactly कितना heat required है, कितना heat absorb करता है या कितना heat lose करता है for a given temperature change of the object. So अगर मेरे पास एक solid object है, या solid बोलो या liquid भी बोल सकते हो, and let's say इसका mass m है, and let's say मैंने इसको heat दिया, and इसका temperature, let's say temperature increased by delta T. So the heat that I have given to the object turns out to be ms delta T, where S is a constant. I'll talk about the constant, but first look at heat equal to ms delta T. M के proportional है heat. It makes sense. जितना ज़्यादा mass होगा, उतना ज़्यादा heat provide करना पड़ेगा to increase the temperature by delta T. Heat is also proportional to delta T. जितना ज़्यादा तुमको temperature बढ़ाना है उस object का, उतना ज़्यादा heat देना पड़ेगा, right? That also makes sense. And the proportionality constant is called the specific heat capacity. Of that object. So वो material पे depend करता है, ठीक है? तो कॉपर का कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, वाटर का कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगा, ऐसे हर लिक्विड हर सॉलिड का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा अपना अपना. ओके, सो द हीट प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड बाय डेल्टा टी अमाउंट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वेयर एम इज द मास, एस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. If the object is cooling down, it will lose heat. If the object cools down, so you can say if you say delta T is the change in temperature, then you can say that the heat lost would be equal to ms delta T. You can say magnitude डाल दो चलेगा, क्योंकि अगर delta T तुम change in temperature मान रहे हो, final minus initial, final will obviously be lesser than the initial temperature, so change in temperature would be negative and उसका magnitude will be the magnitude of the heat lost by the object. Temperature कम होगा मतलब the heat is being lost. Okay, all right, ये देख लो. Then we are going to talk about specific heat capacity values specifically for water and ice, जो दो common चीजें हैं, and फिर थोड़े questions भी देखेंगे इस formula पे based. देख लो. So let's look at the most common values of specific heat capacity. तो सबसे पहले जो हीट है उसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको ms डेल्टा टी लिखता हूँ. Q is my heat supplied to a substance. So S का वैल्यू हो जाएगा Q by m डेल्टा टी. तो यूनिट्स क्या हो जाएगा? SI यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना बन जाएगा? Q is joules, मास मतलब पर किलोग्राम एंड टेम्परेचर चेंज मतलब पर केल्विन. ये SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है? Now often we have the other common unit that is used is calorie per gram per degree Celsius. 1 degree Celsius change and 1 Kelvin change same होता है, ठीक है? 1 degree Celsius change in temperature is equal to 1 Kelvin change in temperature. Okay, ये अपने को पता होना चाहिए. So per degree Celsius change या per Kelvin change in temperature वो that is the same, but यहाँ पर किलोग्राम की जगह जनरली ग्राम्स भी बोल सकते हैं, जूल्स की जगह
कैलोरीज बोल सकते हैं. 1 calorie is a unit of heat. 1 calorie is around 4.18 joules and often approximated to 4.2 joules. ठीक है. So water के लिए specific heat capacity is 1 calorie per gram per degree Celsius. ये अपने को याद रखना. ठीक है. एंड आइस कभी हम याद रखेंगे, वैसे क्वेश्चन में दिया जाता है बट फिर भी इट्स बेटर टू रिमेंबर जस्ट इन केस मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेटर भूल गए वैल्यूज देने को, तो वी शुड नो. ओके. अगर ऐसा यूनिट्स में देखूं, ऐसा यूनिट्स में 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल्स एंड पर ग्राम है ना, करेक्ट. सो 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी है, सो 1000 ग्राम्स के लिए 1000 कैलोरीज होगा एंड 1000 कैलोरी मतलब 4200 जूल्स, राइट. सो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वुड बी 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन. एंड आइस का सिमिलरली कितना होने का, हाफ है ना, 2100 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन. ओके. तो ये जिस वैल्यूज अपन याद रखेंगे. देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. Time to heat 2 kg water from 10 degrees Celsius to 60 degrees Celsius by 2000 watt heater with 70% efficiency is how much? तो एनालाइज करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है. सबसे पहले वाटर दिया गया है जिसको हीट करना है हमें. कितना मास दिया है, 2 kg. कितने से कितने तक हीट करना है, 10 to 60 मतलब कितना टेम्परेचर चेंज, 50 डिग्री सेल्सियस. सो द हीट रिक्वायर्ड फॉर्मूला है हमारे पास ms डेल्टा t. m का वैल्यू 2, s का वैल्यू जूल, सब SI यूनिट्स में भी कर रहा हूँ, किलोग्राम कर दिया. सो 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन इनटू डेल्टा टी मतलब 50. इतना जूल्स रिक्वायर्ड है फॉर द वाटर टू गेट हीटेड फ्रॉम 10 to 60. अब क्या पूछा गया है, इट इज यूजिंग अ 2000 वॉट हीटर विद 70% एफिशिएंसी. ठीक है. सो टाइम टी में कितना हीट देगा, पावर 2000 वॉट्स इनटू टी, इतना हीटर सप्लाई करेगा और उसका एफिशिएंसी 70%. व्हाट डज दैट मीन कि ओनली 70% ऑफ दिस हीट सप्लाइड विल गो इनटू हीटिंग द वाटर. ठीक है. सो only 70% of the heat supplied by the heater will go into heating this water. So this heat eventually that goes to the water must be equal to this. अब बस अपने को कैलकुलेशन करना है टी के लिए जो मेरा टाइम है. दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो ये 30 से 40 यहाँ पर, ये 30 है तो 2 और ये काटता हूँ, तो 3 यहाँ से काट देता हूँ. So T would be equal to 2 into 42 into 5 into 10 divided by 7. So 7 into 6. So कितना बन जाएगा, 2 into 6, 2 into 5, 10. 10 into 6 is 60 and एक ये 2 भी बचा है ना, मैं भूल गया यहाँ पर, तो एक 2 भी आएगा यहाँ पर. तो ये 2 कैंसिल हो गया. 30 into 10 300 सेकेंड. तो इस कैलकुलेशन मेरा चेक कर लेना. ठीक है. जस्ट फॉरगॉट टू टेक दिस 2 डिनोमिनेटर में. Anyway, I hope समझ में आया. Pretty straightforward, just a simple application of MS delta T formula. ठीक है, देख लो. Now let's talk about situations or examples जहाँ पर mechanics and calorimetry को combine किया जा सकता है. For example, एकदम simple example लेता हूँ. कि suppose मेरे पास एक block है, mass m. एंड रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और उसको इसको कुछ वेलोसिटी कुछ इनिशियल v नॉट दे दिया जाता है. ठीक है. सो लेट्स से कि इन या v नॉट नहीं बोलता, कोई स्पीड दे दिया जाता है विच वी डोंट नीड इट्स वैल्यू. लेट्स से ट्रैवल सम डिस्टेंस l. ठीक है. तो बोला गया कि हाफ द हीट जनरेटेड इज अब्सॉर्ब्ड बाय the block. So I want to find कि उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है. So इसमें मतलब what is going to happen exactly, what is exactly happening फिजिक्स में, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो वर्क फ्रिक्शन कर रहा है that gets converted to heat. मतलब क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा फ्रिक्शन का, म्यू इनटू mg, displacement to the right, so minus mu mg into L. The negative sign is because the force and displacement are in opposite directions, correct?
Now this will be equal to the change in kinetic energy. So kinetic energy is reducing because negative है, right? So kinetic energy कम हो रहा है. Total energy is always conserved. Mechanical energy is not conserved here, but total energy. So what do I mean by total energy? कि इसका जो kinetic energy कम हो रहा है, it is getting converted to heat energy. Okay? और ये जो heat energy है, वो कहाँ पर किससे absorb, कौन absorb करेगा? It may go into the atmosphere, it may get absorbed by the ground, and it may get absorbed by itself, by the block. तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा. अभी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल दे रहा हूँ, हाफ द हीट जनरेटेड. वो कोई भी बोल सकते, उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं. 30% ऑफ द हीट जनरेटेड इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लॉक, कुछ भी. सो यहाँ पे मैंने लिखा है, चलो चेंज कर देता हूँ, चलो बोलता हूँ मैं 30% ऑफ द हीट जनरेटेड इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लॉक. सो दिस इज द हीट जनरेटेड. द हीट प्रोड्यूस्ड इज म्यू mgl, मैग्नीट्यूड इसका. द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट. इसका 30% क्वेश्चन बोला गया है goes to the is absorbed by the block. So उसको मैं ms delta t के बराबर करूंगा, and thus you will get delta t कितना हो जाएगा 3 mu gl divided by 10s. ठीक है. So it's not a difficult question, but तुमको physics wise पता होना चाहिए कि exactly what is the physics process that is happening here. The loss in kinetic energy is getting converted to heat. Some part of it is getting absorbed. कितना part वो question में दिया जाएगा. Okay, देख लो. Let's look at a question from J 2025. Water falls from a height of 200 meters into a pool. Temperature change of water पूछा गया था. Assume no dissipation of heat from water in the pool. इसका मतलब क्या है कि कुछ amount of water गिरता है pool में, and then because of the loss of mechanical energy of that water, the water will get heated up. तो question में बोला गया no dissipation of water from the water, मतलब we are going to assume कि जितना भी mechanical energy loss हुआ water का, वो पूरा का पूरा खुद के हीट में चला जाएगा, खुद के टेम्परेचर इंक्रीज में चला जाएगा. ओके, सो लेट्स से कि कुछ वाटर ऑफ मास m फॉल्स इनटू अ पूल. ठीक है, एंड देन व्हेन इट फॉल्स इनटू अ पूल वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट ये जो मास m ऑफ वाटर है इट विल कम टू रेस्ट. वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट इट कम्स टू रेस्ट. सो जो भी उसका मैकेनिकल एनर्जी था यहाँ पर पूरा गायब होके हीट में कन्वर्ट हो गया. कितना मैकेनिकल एनर्जी था? इफ आई टेक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट द पूल इटसेल्फ, और ये हाइट h बोलो तो mgh इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी जीरो. तो पूरा जो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था इनिशियली, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू, दैट विल जस्ट गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर इटसेल्फ, ms डेल्टा t. ठीक है, तो हो गया. अभी डेल्टा t का वैल्यू आ गया मेरे पास gh by s. तो g मतलब 10, h कितना दिया 200 मीटर्स, एंड s इज 4200 जूल्स पर किलोग्राम. सब ऐसा यूनिट्स में कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 by 42 मतलब 10 by 21 केल्विन, राइट. सो दिस इज ऑलमोस्ट, ऑप्शन है ना, ऑप्शन से एलिमिनेट करना, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 0.5 केल्विन है ना, हाफ है ना. तो क्लोजेस्ट आंसर देखो ना. ओके, इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे तो पूरा कैलकुलेशन काफी बार करने की जरूरत नहीं पड़ती. देख लो. Now let's look at the important concept of mixing of substances. तो suppose मेरे पास mixing या bringing two substances in contact. So suppose मेरे पास दो objects है. Let's say इसका temperature कुछ TA है, and let's say ये object है उसका temperature कुछ TB है. ठीक है, इसका specific heat capacity SA and इसका SB. Alright. तो if they are brought in contact, मैंने बोला था कि heat will flow until they acquire the same temperature. As soon as they acquire the same temperature, the heat flow will stop. So I want to find the final temperature. ये जो final temperature है वो कितना है? ठीक है, common temperature. तो वो कैसे करूँगा? Let's say कि TA is greater than TB. So heat will flow from A to B when they come in contact, higher to lower temperature. So heat absorbed by B कितना बन जाएगा? मास भी देना चाहिए मुझे, MA and MB. M of B into S of B, MS delta T. Delta T, अब temperature has gone from TB to T, right? Heat lost by A. A will lose heat because A का temperature कम होने वाला है.
heat is flowing from A to B, so heat is getting extracted from A, तो A का temperature is going to decrease, ठीक है. So T will be greater than TB because heat B को मिल रहा है तो उसका temperature बढ़ेगा, and A से heat निकल रहा है, so T will be lesser than T. So heat lost by A would be MA MS delta T. Notice मैंने क्या किया, TA minus T लिखा है because मुझे यहाँ में magnitude लिखना है, heat loss का magnitude लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. MS delta T. I already know that T is going to be lesser than TA, okay, because heat is being lost. Alright, now I will equate these two. The magnitude of heat lost by A से जितना heat निकल रहा है उतना पूरा B को जा रहा है. So I'm going to equate them. So I'll have MBSP into T minus TB should be equal to MASA TA minus T. ये ध्यान रखना TA minus T किया है यहाँ पर because TA is going to be greater than T. यहाँ पर T is going to be greater than TB, and then you just have to solve, values वगैरह दिया जाएगा, so you just have to solve for the common temperature T. Okay, so it's just energy conservation कि जितना heat निकल रहा है A से उतना सारा B को जा रहा है. Okay, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2019. When 100 grams of liquid A at 100 degrees Celsius is added to 50 grams of liquid B at 75 degrees Celsius, temperature of the mixture becomes 90 degrees Celsius. So ये information को थोड़ा mathematically लिखते हैं. 100 ग्राम of liquid A का 100 ग्राम at 100 degree Celsius is added to B का 50 grams at 75 degree Celsius, and इनका जो मिक्सचर बनता है उसका टेम्परेचर कितना बन जाता है 90 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो A is losing heat because 100 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है and B is gaining heat 75 से 90 जा रहा है. So let's equate that. Let's say इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे है and इसका SB है. So इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, मास MS डेल्टा T 100 into SA into डेल्टा T 100 से 90 मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ डेल्टा T का कितना 10. This is the heat lost by A. This should be equal to the heat gained by B. B का कितना heat gain होगा, मास into S into डेल्टा T 75 से 90 मतलब 15. ठीक है. तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा SA and SB में. देखो क्या रिलेशन आएगा, ये तो मैं लिख सकता हूँ ये 5 बन गया. सो एंड ये 5 ये 20 बन जाएगा. सो 20 SA इज इक्वल टू 15 SB मतलब 4 SA शुड बी इक्वल टू 3 SB. ये एक रिलेशन है जो अपन आगे यूज कर सकते हैं. सेकेंड इन्फॉर्मेशन लेट्स सी क्या बोला गया है. इफ 100 grams of A at 100 degree Celsius is added to 50 grams of A at 50 degree Celsius, तो अभी इसका 75 की जगह 50 कर दिया. सो फिर से इक्वेशन लिखता हूँ. फाइनल टेम्परेचर, now I don't know, final temperature is unknown. So final temperature mixture का some T and this is at 100 degree Celsius and this is at 50 degree Celsius. ठीक है. So heat lost by A will lose heat because A is hotter than B, so A से heat निकलेगा. So A का कितना heat loss होगा, mass of A which is 100 gram into the heat capacity, thermal heat specific heat capacity into delta T. 100 से T magnitude 100 minus T because T is lesser than 100. This is the magnitude of the heat loss should be equal to the heat gained by B. Heat gained by B कितना है, B का mass 50 grams 50 into MS delta T. delta T मतलब 50 से T जा रहा है, T बड़ा है 50 से. ठीक है. सो मेरे पास आ जाएगा ये 50 को तो ऐसे 2 करता हूँ. So 2SA into 100 minus T should be equal to SB into T minus 50. Now we already have this relation, right? So I can just substitute SA as 3SB by 4. तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 into 3SB by 4. Okay, I've just substituted इस equation से यहाँ पर substitute किया. Into 100 minus T should be equal to SB into T minus 50. So SB कट गया. 2 into 3 नहीं, ये 2 कैंसिल करता हूँ, 2 इधर लेके आता हूँ. 300 minus 3T यानी ये 2 इधर जा रहे हैं, 2T minus 100 तो कितना बन जाएगा देखो, 5T शुड बी इक्वल टू 400, सॉरी करेक्ट, 300 plus 100. सो T का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड आई कैन डू एवरीथिंग इन डिग्री सेल्सियस बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद द चेंज इन टेम्परेचर. केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम. करेक्ट. अगर तुम बोलते हो जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज 2
73 Kelvin. 1 degree Celsius is 274 Kelvin. So when you change the temperature by 1 degree Celsius, the change in Kelvin is still 1 Kelvin. Right? So change, जो difference है, उसका वैल्यू सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, सेल्सियस में करो या फिर केल्विन में करो. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. ऑलराइट, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा बस कैलकुलेशन अपने को करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कैलकुलेट द हीट लॉस्ट, कैलकुलेट द हीट गेन्ड बाय द अदर ऑब्जेक्ट एंड इक्वेट. देख लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज ट्रांजिशन. So phase transition में जैसे solid gets melted into liquid या liquid gets vaporized into steam या reverse कि liquid gets frozen into solid, तो कितना heat lost है, कितना heat absorb होगा, उसके बारे में बात करते हैं. So suppose मेरे पास एक solid है and उसको liquid में convert करना है. What happens is during phase transition the temperature remains constant. ये मतलब observation है, we have to remember. The temperature remains constant. So temperature नहीं बढ़ रहा, but फिर भी heat is required. So on a molecular level, it is required to break the bonds या weaken the bonds. कि solids में bonds बहुत strong होते हैं, intermolecular bonds. तो उनको break करने के लिए, उनको weaken करने के लिए, when the solid gets converted to liquid, तो उसके लिए heat is required. But the temperature remains constant. ठीक है? So अगर इसका mass m है, the heat required is equal to m times L. इसको LF बोलते हैं. So LF is a constant which is dependent on the substance. LF is called the latent heat of fusion, या latent heat of melting, या latent heat of freezing. कुछ भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में. ठीक है? So the heat supplied is just proportional to the mass. Temperature change तो है नहीं. And that proportionality is called the latent heat of fusion या melting या freezing. This heat जो मैंने लिखा है, this will also be the heat lost by the liquid if it freezes. अगर liquid freeze हो रहा है solid में, तो that will be the heat lost. यही amount of heat will be lost by the liquid. If solid is melting, मतलब solid is absorbed heat, it will gain heat. But the magnitude of heat lost or heat absorbed यही रहेगा. ठीक है? And then if I go from liquid to gas, so I heat liquid and it vaporizes into gas, the heat, once again the heat absorbed by the liquid is proportional to the mass of the liquid, and the proportionality को LV से represent करते हैं, where LV is the latent heat of vaporization या condensation. ठीक है? And once again, if gas condenses into liquid, it will lose this much amount of heat. So LV is a constant that depends on the substance again. ठीक है? Alright. तो जो most common चीज, जो common substance है, water, ice, steam, तो उसके बारे में बात करते हैं. So ice to water या water to ice, the latent heat of fusion is 80 calorie per gram. Heat divided by mass. Heat by mass will be the unit of L, right? And you can of course multiply it by 4.2 to get SI units में. 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल्स पर ग्राम में मिल जाएगा. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जूल्स पर किलोग्राम हो जाएगा. ओके? एंड देन अगर वाटर टू स्टीम या स्टीम टू वाटर, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम. ऑलराइट, तो ये हम वैल्यूज थोड़ा याद रखेंगे, जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है वैल्यूज. ओके, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस पर. Let's look at a question that came in J 2025. A lead bullet at 300 Kelvin is fired into a block. The bullet having melting point at 600 Kelvin melts down. तो मतलब initially 300 Kelvin था, and अब वो 600 Kelvin बन के melt हो जाता. ठीक है? If the heat required for this process is 625 joules, find the mass of the bullet. And latent heat of fusion दिया गया है, specific heat capacity दिया गया है. So let's see किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे. तो सबसे पहले मेरे पास बुलेट है. It is in the form of solid 300 Kelvin पे, but then it becomes liquid. So first it goes to 600 Kelvin,
सॉलिड एंड उसके बाद वो मेल्ट होता है। रिमेंबर मेल्टिंग पे 600 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि इससे ज्यादा हीट होता है कि नहीं होता है, मतलब देन वी हैव टू जस्ट अज्यूम दैट इट इज एट 600 केल्विन ओनली, है ना, क्योंकि ऐसे जेईई मेंस के क्वेश्चन में कभी कभार लैंग्वेज उतना क्लियर नहीं होता है। वी हैव टू डिड्यूस फ्रॉम व्हाट दे आर आस्किंग। सो दिस विल मेल्ट एंड बिकम लिक्विड एट 600 केल्विन। ओके, सो फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। कितना हीट दिया? 625। सो पूरे प्रोसेस में हीट कितना हो जाएगा? आई कैन राइट इट एज दिस इज ms delta t. Heat is used to increase the temperature of the bullet, and then this is melting. So ms delta t मतलब 300 से 600 plus ml mass into latent heat of fusion for melting, ठीक है। So s का वैल्यू कितना है? 125 and delta t का वैल्यू 300 plus m into LF कितना है? 2.5 into 10⁻⁴। सो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो सब ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं। तो 625 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 300 प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब लेट्स डू सम कैलकुलेशन। तो यहां पर अगर मैं देखूं 2.5 इंटू 10⁻⁴ क्या है? 2, इसका मैं लिख सकता हूँ 250 इंटू 10⁻², करेक्ट। 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 10⁻⁴ को 100 से डिवाइड कर दिया। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? सो दैट यहाँ पे देखो 125 से डिवाइड कर दिया, 125 से डिवाइड कर दिया, 125 से डिवाइड कर दिया, 125 इंटू 5 is 625, ये पता है। सो नाउ इट बिकम्स वेरी इजी कैलकुलेशन। ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 200 kilograms. So 5 divided by 500 kilograms, मतलब 1/100 किलोग्राम। आंसर ग्राम्स में था, ऑप्शंस में ग्राम्स में दिए गए थे। दिस विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स, मतलब 10 grams. So the answer for the bullet would be 10 grams. So basically when you have these kind of processes, you just have to keep adding the heat according to the formula that we know for individual process. Okay, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2025. 10⁻³ kilograms of ice at -10 degrees Celsius is converted to steam at 110 degrees Celsius. तो heat required कितना होगा? Specific heat capacity of ice, water, steam दिया गया था, latent heat of fusion, latent heat of vaporization भी दिया गया था. Okay, and I have to calculate. So I have ice at -10 degrees Celsius. उसको मुझे कन्वर्ट करना है स्टीम पे या वेपर पे at 110 degrees Celsius. तो प्रोसेस क्या होगा? पहले तो मैं I'll have to take it to ice at 0. Then I have to melt it to water at 0. Then water becomes 100. Then I have to vaporize it so that it becomes steam at 100. And then steam at finally 110 degrees Celsius. तो ऐसे कितने प्रोसेस है? 1 2 3 4 5 पार्ट्स में the entire process is divided. And I have to calculate the heat in every part and add it. ये करना है मुझे, ठीक है। So heat would be, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ms of ice into delta t मतलब 10 प्लस मेल्टिंग में m into l, l मतलब क्या? latent heat of fusion, right? प्लस ये अगेन ms delta t पर s of water अभी delta t मतलब 100, फिर वेपराइजेशन m into l and then steam. तो स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1920 दिया गया था, ठीक है। सॉरी, ms delta t, ms delta t मतलब 10। ओके, सो m तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस क्या है? 2100, सब ऐसा यूनिट्स में दिया गया अपने को, इंटू 10, सो 21000 प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.35 into 10⁵, plus specific heat capacity of water 4180 into 100. तो 4180 into 100 plus latent heat of vaporization 2.25 into 10⁶ plus
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम 1920 इंटू 10, ठीक है। तो ये पूरा अब बस मुझे कैलकुलेशन करना है। ओके, तो मास कितना 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ अगर मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर लूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। 10⁻³ और ये 3 कट गया, तो 21 प्लस 3.35 इंटू 10⁻² बचेगा, सो 335 प्लस 418, 10⁻³ कट गया, प्लस हाँ ये देखो 2.25 इंटू 10⁻³ बचेगा मास अंदर मल्टीप्लाई करके, तो वो बनेगा 2250 प्लस ये बचेगा 19.2, करेक्ट। जस्ट मल्टीप्लाइंग मास मतलब 10⁻³ है। ओके, तो देखो कितना बन जाएगा, you can do the calculation, खुद से कर लो, you will get it as 3043.2 joules and closest answer would be this. ओके, तो बेसिकली कुछ नहीं, कैलकुलेशन ध्यान से करना है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, let's look at a question that came in JEE 2022. A 5 kg copper block at 500 degree Celsius placed on a large ice block. तो एक लार्ज आइस ब्लॉक है मेरे पास और उस पर एक कॉपर का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास m जो 5 kg दिया गया है एंड इट इज एट 500 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला गया, फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। सो इसका मतलब कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब वी हैव गिवन अ लार्ज आइस ब्लॉक, सो फाइनली देयर इज सम आइस लेफ्ट, मतलब उसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे क्वेश्चन में बोला जाना चाहिए था कि इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो अगर पूरा आइस मेल्ट नहीं होता है, थोड़ा आइस बच जाता है, तो मतलब उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। नाउ अल्टीमेटली तो एवरीथिंग शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, अदरवाइज हीट विल कंटिन्यू टू फ्लो टिल द टेम्परेचर इक्वलाइजेस। इसका मतलब आई कैन से दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एवरीथिंग इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो हाउ मच हीट कैन दिस ब्लॉक गिव when it reduces to 0 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का कितना हीट गिव आउट कर सकता है, मास विच इज 5 kg इंटू एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया गया है। नाउ लुक एट दिस इज 0.39 जूल्स पर ग्राम दिया गया है। सो पर किलोग्राम कितना होगा, इंटू 1000 करेंगे, राइट। पर ग्राम कितना हीट 0.39 जूल्स, तो पर किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 390, करेक्ट, एंड 390 इंटू डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर लॉस हो रहा है 500, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो दिस इज द हीट दैट कॉपर कैन गिव व्हेन इट रिड्यूसेस टू 0 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा हीट नहीं दे सकता, बिकॉज एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो हीट फ्लो विल स्टॉप, बिकॉज टेम्परेचर हैज बिकम इक्वल फॉर कॉपर एंड आइस, ठीक है। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स into latent heat of fusion, correct। so latent heat of fusion कितना दिया 335 joules per gram, तो पर किलोग्राम कितना हो जाएगा 335 into 1000, राइट। तो मास ऑफ आइस निकालना, तो एक तो पहले ये तो 2 से डिवाइड कर लेता हूं। सो मास ऑफ आइस वुड बी 5 into 390 डिवाइड बाय 2 into 335, ओके। तो अब बस अपने को ऑप्शन से पूरा कैलकुलेशन करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लेते हैं। तो इफ आई जस्ट मेक अ बिट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 5 into 2 10 बन जाएगा, 10 into 390 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 बचेगा, 4 into 335, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 400 है, तो 4 into ये 100 कर देता हूँ, तो ये अराउंड 1000 डिवाइडेड बाय 335। सो द आंसर शुड बी वेरी क्लोज टू 3000 बाय 333 इज 3, राइट। मुझे पता ना 333 into 3 is 999, right। so 335 into 3 will be close to this, correct। so the answer that is very close to 3 is 2.9 किलोग्राम। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, मतलब ऑप्शन से तुम फटाफट सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। देख लो, लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 जहां पे मिक्सिंग हो रहा है। m grams of steam at 100 degree Celsius mixed with 200 grams of ice at 0 degree Celsius. If it produces water at 40 degree Celsius, m का वैल्यू कितना है? सो मेरे पास स्टीम है
at 100 degrees Celsius and it is mixed with ice at 0 degrees Celsius and ultimately it produces water at 40 degrees Celsius. ठीक है, so यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमने पहले भी किया है when we considered mixing of substances या objects that come in contact, just equate the energy lost or heat lost to the heat absorbed. So मतलब steam is going from 100 to 40, so steam is going to lose heat. Ice is going from 0 to 40, 0 to becoming water and then to 40, then it is going to gain heat. So जितना steam heat lose करता है उतना ही ice will gain heat. ठीक है, तो steam heat कितना lose करेगा? सबसे पहले तो steam क्या होगा? Water बनेगा, water at 100 degrees Celsius, right? And then it will come to 40 degrees Celsius water. Ice क्या होगा? Ice will first melt and become water at 0 degrees Celsius and then it will come to water at 40 degrees Celsius, right? So पहले कितना हीट लॉस करेगा? फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कितना हीट लॉस करेगा? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इज 540 दिया गया, करेक्ट? फिर यही वाटर m ग्राम्स ऑफ वाटर इज गोइंग फ्रॉम 100 टू 40, सो m इनटू s ms डेल्टा t इतना लूज करेगा. अब s कितना होता है वाटर का? कैलोरीज पर ग्राम की बात कर रहे हैं अपन सब कुछ, सो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट? सो ms into delta T, 100 से 40, magnitude लिख रहा हूँ 60. This is the total heat lost by m grams of steam when it condenses to water and then comes to water at 40 degrees Celsius. And now this should be equal to the heat gained by ice. Ice कितना है? 200 grams. So 200 into melt होने पे latent heat of fusion से multiply करूँगा ml and then ms delta T. S मतलब 1 into delta T is 40. ठीक है, बस अब m का वैल्यू निकालना है. तो ये तो सिंपल हो गया. ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे 600 हो गया. 600 m इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? अगर मैं 40 कॉमन ले लूँ तो 200 इंटू 40 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये बचेगा 2 + 1 3 बचेगा, करेक्ट? 80/40 is 2 + 1, राइट? तो ये 3 बचेगा. सो 200 इंटू 3 600 कट गया, m का वैल्यू 40 grams. Okay, so 40 grams of steam. Alright, so ऐसे mixing questions में काफी straightforward है. Just calculate the heat lost by whatever object is losing heat equated to the heat gained by जो भी absorb कर रहा है heat. देखें, m1 grams ice at -10 degrees Celsius are added to m2 grams water at 50 degrees Celsius. Finally, only water is left at 0 degrees Celsius. पूछा गया what is the latent heat of fusion? Specific heat capacity of ice दिया गया है. Okay, so मेरे पास ice है at -10 degrees Celsius and it is added to, इसका मास m1 है and it is added to water at 50 degrees Celsius. ये m1 है, ये m2 है and then ultimately सिर्फ water बचता है at 0 degrees Celsius. So जितना ice heat gain करेगा उतना ही ये वाला m2 heat lose करेगा, right? So कितना gain करेगा? पहले तो this ice has to melt, so m1 into latent heat of fusion. Sorry, पहले ice has to go from -10 to 0 degrees ice. Zero degrees Celsius, and then it will melt into water. Correct? So पहले m1 into s into delta t मतलब कितना? -10 से 0 10 प्लस अभी मेल्ट कर रहा है, so m1 into lf should be equal to कितना हीट लूज करेगा? m2 इंटू s, वाटर का s कितना होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी 50 से 0 50. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा. कितना आ जाएगा? देखो 50 m2 माइनस दिस इज 5 m1 डिवाइडेड बाय m1, राइट? सो मैंने ये राइट हैंड साइड पे लिया फिर m1 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 50 m2 बाय m1 माइनस 5. कहाँ पर है ऑप्शन? ये, ठीक है, देख लो. Now let's talk about the concept of heat capacity या thermal capacity. उसको कभी कभार C से प्रेजेंट करते हैं. So C is defined as mass into specific heat capacity. कुछ नहीं, it's just another variable. हमने अभी तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के से डील किया है. So मास से अगर मल्टीप्लाई किया तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी. ठीक है, वेरी सिंपल.
Now let's talk about water equivalent. Generally water equivalent of a vessel ऐसा कुछ बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास एक वेसल है, उसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है. सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वेसल इज द मास ऑफ सम इमेजिनरी वाटर with the same heat capacity as the vessel. क्या बोला मैंने कि water equivalent of a vessel मतलब you are trying to replace vessel by water which will have the same thermal capacity or same heat capacity as the vessel itself. So मतलब इसका मास, इसका अगर मास m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, so थर्मल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, हीट कैपेसिटी कितना बनेगा, ms. दैट शुड बी इक्वल टू दिस वाटर इक्विवेलेंट, मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑफ वाटर. So ये water equivalent is just another definition of another variable, another term which is defined as the mass of water which has the same imaginary water which has the same heat capacity as that of the vessel. तो मैंने heat capacity is equal की vessel के and water के, तो कितना water equivalent है वो मुझे पता चल गया. ठीक है, it's just for, you can say it's just for comparison और कुछ नहीं. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेसल है जिसका लेट्स से मास इज 1 किलोग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेट्स से है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मतलब दिस वेसल विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच मास ऑफ वाटर. सो आई विल से 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स, ग्राम्स में कर रहा हूँ बिकॉज ये भी ग्राम्स में है, इंटू 0.1. This will be what will this be? This will be m into s, heat capacity, should be equal to the mass of water, imaginary water, which will have the same heat capacity as this vessel, into 1 calorie per gram. Specific heat capacity of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. So equivalent water कितना बन जाएगा, 100 grams. So we will say कि 1000 grams of this vessel will absorb the same heat as 100 grams of water. That is what it physically means. Water equivalent मतलब कितना ग्राम of water will absorb the same heat as your vessel या object. ठीक है, देख लो. Let's look at a nice question from JEE 2020. A calorimeter of water equivalent 20 grams. सबसे पहले calorimeter मतलब vessel, कुछ नहीं है, it's just a name for vessel जिसमें तुम mixing कर सकते हो substances की. ठीक है, so calorimeter of water equivalent 20 grams. So calorimeter जो vessel है उसका water equivalent दिया गया question में. Contains 180 grams of water at 25 degrees Celsius. M grams of steam at 100 degrees Celsius is mixed in it. Till the temperature of the mixture becomes 31 degrees Celsius. M का वैल्यू कितना है ये पूछा गया है. M is closest to what? So सबसे पहले you have to realize कि अभी कैलोरीमीटर का भी वेसल का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है. So वेसल का टेम्परेचर इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस था, वो भी फाइनली 31 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. ओके, नाउ calorimeter of water equivalent 20 grams बोला है, मतलब क्या, it will absorb the same heat as 20 grams of water. So when I'm writing the equation, I can treat the calorimeter as 20 grams of water. So total I can just say कि 20 plus 180 total कितना water है, 200 grams of water है. Actually नहीं है, but calorimeter will absorb the same heat as 20 grams of water. So I can just mathematically I can treat it as 20 grams of water. So total कितना water है, mathematically 200 grams of water है at 25 डिग्री सेल्सियस. फिर इट इज मिक्सड विद m ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इवेंचुअली क्या बनता है मेरे पास, वाटर. इवेंचुअली 31 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बनेगा एट 31 डिग्री सेल्सियस. तो ये तो बस हीट होगा एंड ये जो m ग्राम्स ऑफ स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये पहले तो कंडेंस होने वाला है m grams of water at 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन वो उसका टेम्परेचर कम होगा टू 31 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट. तो ये कितना हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर 20 ग्राम कैलोरीमीटर, 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट का जो कैलोरीमीटर है प्लस 180 ग्राम वाटर, दोनों आर गोइंग फ्रॉम 25 टू 31. आई कैन ट्रीट इट एज 200 ग्राम्स ऑफ वाटर. सो m s मतलब 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा t.
6, 25 से 31, इतना हीट गेन किया है, शुड बी इक्वल टू हीट लॉस्ट। हीट लॉस कितना होगा? पहले कंडेंसेशन में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना, 540 कैलोरी, सब कैलोरी में कर रहा हूँ तो इजी हो जाएगा, m इंटू 540 प्लस ये 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर चेंज, 69, करेक्ट। तो ये बन जाएगा m इंटू 1 इंटू 69, ठीक है। तो अब अपने को m का वैल्यू कैलकुलेट करना तो सिंपल है। सो आई हैव, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो ये 2 बन जाएगा, ये 180 बन जाएगा एंड ये 23 बन जाएगा, करेक्ट। सो m का वैल्यू बन जाएगा 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 23 इज 203, ठीक है। सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो क्लोजेस्ट आंसर वुड बी दिस, ठीक है। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट थर्मोमेट्री। सो थर्मोमेट्री में क्या है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, बेसिकली जो अपने सिलेबस में है, इट्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ स्केल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे चेंज हो सकता है, कितना क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ टू change the numerical value of the temperature from one scale to another. Okay, so let's just quickly look at that. So the whole idea is that it is a linear relation. What do I mean by that? कि let's say किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर is some theta degree Celsius, ठीक है, let's say theta C, and it is also equal to, या चलो मैं x बोलता हूँ, x degree Celsius and also equal to y degree Fahrenheit, ठीक है। So I can say that y is equal to mx plus c, which is the straight line relation. So it's a linear relation between x and y. So the relation between degree Celsius and degree Fahrenheit is a linear one, ठीक है। अब मुझे निकालना है m का वैल्यू क्या है and c का वैल्यू क्या है। So for that I will use 2 data points which I have, कि 0 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ये फैक्चुअल है जो याद रखना है अपने को, एंड 100 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बस अभी अपने पास 2 डेटा पॉइंट है तो इसमें डाल के निकाल सकते हैं। सो 32, y का वैल्यू 32 है, सो 32 शुड बी इक्वल टू m, x का वैल्यू 0 प्लस ये c इज माय कांस्टेंट, तो c का वैल्यू कितना बन गया 32, ठीक है। एंड देन दूसरा डेटा पॉइंट क्या है, 212 शुड बी इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 100, सो 100m प्लस c का वैल्यू क्या है 32, राइट। सो 100m शुड बी इक्वल टू 180 आ जाएगा, 212 माइनस 32, एंड देयरफॉर m का वैल्यू कितना बन जाएगा 18/10 मतलब 9/5। सो एनी टेम्परेचर दैट यू वांट इन फ़ारेनहाइट which is y would be equal to 9/5 times x. X is the numerical value of the temperature in Celsius plus 32, ठीक है। और अगर उल्टा कन्वर्ट करना है तो इसको ऑब्वियसली x in terms of y तो तुम खुद ही लिख सकते हो, ओके। x in terms of y कितना आ जाएगा 5y minus 32 into 5/9, राइट। सो मतलब ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, याद रखोगे तो अच्छी बात है, बट यू कैन ऑफ कोर्स जस्ट क्विकली सॉल्व दिस एंड गेट दिस रिलेशन, याद रखोगे तो अच्छी बात है, ओके। देख लो, लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025 व्हिच रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ग्राफ? तो ये दो तो ओरिजिन के थ्रू पास करें तो इमीडिएटली वी कैन से कि वो एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो नहीं होता, करेक्ट। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। थर्ड भी डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोई टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका डिग्री सेल्सियस में भी वैल्यू बढ़ेगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, फ़ारेनहाइट बढ़ाने पर डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो ये भी एलिमिनेट, तो डायरेक्ट ऑप्शन 4। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट तुम ऑप्शन 4 मतलब एलिमिनेशन से कर सकते हो, बट अगर प्रॉपरली करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि मेरे पास रिलेशन था, दिस वॉज इन फ़ारेनहाइट, सो let me write temperature in Fahrenheit, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। temperature in Fahrenheit is 9/5 times temperature in degree Celsius plus 32, ये रिलेशन हमने निकाला था। यहाँ पे मुझे
टेम्परेचर इन सेल्सियस को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है. सो टेम्परेचर इन सेल्सियस वुड बी 5 TF डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 by 9 into 32. ठीक है. तो कैन यू सी दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट. तो स्लोप इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप, एंड y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव y इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in J 2024. If the temperature of a body increases by 40 degrees Celsius, temperature change on Fahrenheit scale is how much? So I can write my relation. This is in Fahrenheit, 9 by 5 times in x is in degree Celsius plus 32. ये है correct. So change in Fahrenheit delta y would be 9 by 5 times delta x. Correct. 32 तो constant है. So हो गया 9 by 5 into delta x कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. तो ये बनेगा 72. ठीक है, सिंपल. Let's look at a question that came in J 2024. On temperature scale x, so x is some unknown temperature scale. The boiling point of water is 65 degrees x, and freezing point is minus 15 degrees x. तो minus 95 degrees x corresponds to how many degrees Fahrenheit? ये question में पूछा गया था. Okay, so ऐसे question में भी we got to assume there is a linear relation between this new scale x and f. ठीक है. So let's say कि y degree Fahrenheit is equal to or is corresponds to x degree x. ऐसा मैं बोलता हूँ. ठीक है. So I can write y is equal to mx plus c. ऐसे लिख सकता हूँ मैं. तो boiling point of water is 65 degrees x and freezing point is minus 15 degree x. So 65 degree x, so 65x, x का वैल्यू अगर 65 लिखूँ मैं एंड m का वैल्यू तो अननोन है, तो m इंटू 65 प्लस c शुड करस्पॉन्ड टू फ़ारेनहाइट में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 212. सो 212 is 65m plus c, करेक्ट. देन freezing point is minus 15 degrees. So freezing point in Fahrenheit is how much? 32. So this is minus 15m plus c, correct. And मुझे क्या चाहिए फाइनली कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट विल करस्पॉन्ड टू 95 माइनस 95x प्लस c. ठीक है. ओके, तो अपने को सॉरी माइनस 95m प्लस c. ऑलराइट. तो मुझे अगर फर्स्ट दो इक्वेशन से m एंड c का वैल्यू निकल गया, वो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकाल पाऊंगा. ये अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ऑलराइट. तो सबसे पहले तो अगर 1 माइनस 2 करूँ तो c एलिमिनेट हो जाएगा. तो 212 माइनस 32 is 180 and this will be 65 minus 15 is 80. So 80m. So m का वैल्यू बन जाएगा 180 by 8 80 मतलब 18 by 8 मतलब 9 by 4. ठीक है. सो m का वैल्यू 9 by 4 बन गया. अभी मैं सेकंड इक्वेशन में अगर 9 by 4 डालूं तो c का वैल्यू निकल जाएगा. तो c का वैल्यू देखो कितना बन गया 32 प्लस 15 इंटू 9 by 4. ठीक है. उसको अपन बाद में कैलकुलेशन करते हैं. सो अब y का वैल्यू कितना बन जाएगा माइनस 95 इंटू m, m मतलब 9 by 4 प्लस c का वैल्यू 32 प्लस 15 इंटू 9 by 4. ठीक है. तो सबसे पहले माइनस 95 प्लस 15 इज माइनस 80. सो 32 माइनस 80 इंटू 9 by 4, तो ये 20. 9 इंटू 20, करेक्ट. तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ. सो y वुड बी इक्वल टू 32 माइनस 180. 180 माइनस 32 कितना है 148. तो ये बन जाएगा माइनस 148 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. तो इस तरीके से अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. बाकी सिंपल लीनियर रिलेशन स्टार्ट ऑफ विद दिस इक्वेशन इस तरीके के क्वेश्चंस में देख लो. Let's look at a question that came in January 2019. A linear thermometer reads x naught for boiling water and x naught by 3 for 0 degree Celsius ice. Well, it should be obvious that there is some new scale that the thermometer is using, x naught for boiling water and x naught by 3 for 0 degree Celsius ice. What is the temperature in degree Celsius if it reads x naught by 2? ठीक है. तो once again I will write y equal mx plus c, where y is let's say in degree Celsius and x is in कुछ degree x. ठीक है. डिग्री एक्स इज अननोन स्केल, द थर्मोमीटर वाला स्केल.
ठीक है, ओके. सो 0 डिग्री सेल्सियस आइस करस्पॉन्ड्स टू x0 by 3. So x0, so 0 degree Celsius ice, 0 should be m into x0 by 3 plus c, correct. फिर बॉइलिंग वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस आइस करस्पॉन्ड्स टू x0 प्लस c. तो यहां से पहले सॉल्व करके m और c का वैल्यू फटाफट निकाल देते हैं. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 100 शुड बी इक्वल टू 2m x0 by 3, करेक्ट. सो m का वैल्यू कितना बन जाएगा 300 by 2x0, राइट. एंड मतलब इसको तो 150 लिख सकता हूँ, ठीक है. एंड c का वैल्यू बन जाएगा यहां से माइनस mx0 by 3. सो मेरे पास बन गया y इज इक्वल टू m is 150 by x0 into x माइनस m का वैल्यू इज 150 by x0, करेक्ट. m का वैल्यू इज 150 by x0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया x0 करके 150 by 3 is 50. ये बन गया. अब मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू कितना है x0 by 2. यहाँ पे x0 by 2 लिखते हैं तो देखो कितना आ जाएगा 150 by 2, 75 minus 50 is 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देख लो. That's it for today. आज हमने पूरा कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमेट्री कर लिया है स्टार्ट टू एंड. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ PYQs एंड ऑफ कोर्स फुल थियरीज फ्रॉम 0 to PYQs. ओके, अभी बस तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम लास्ट फ्यू इयर्स के PYQs खुद से कर लो एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व majority if not every single PYQ from the last few years. All right, I'll see you next time and I'll see you with the top.